So let's start with diprotic acids, diprotic weak acids. So far we have discussed weak monoprotic, that is monobasic acids. Now we will discuss diprotic and triprotic weak acids. Diprotic weak acids. Diprotic weak acids. So let us take the example of this diprotic weak acid, H2A. H2A is the example of a weak diprotic acid. How do we dissociate this? Now see. This is how we will show the dissociation. But since it's a diprotic acid, the dissociation will occur in two steps, two consecutive steps. So we have to know, in the first step, one H plus will come out. So this is the dissociation in the first step. What have I done? I've just taken out one H plus from H2A. So in the first step of dissociation of H2A, I get H plus and HA minus. These are the two species which I get. At T equal to 0, that is initially, I have C moles per liter. C stands for concentration in moles per liter. At equilibrium, I'll have to write. So C minus C alpha 1, where alpha 1 is the degree of dissociation in this particular step. So C alpha 1 moles per liter of H2A have dissociated. Minus sign के बाद जो होता है, that is what? Dissociated. So C alpha 1 moles per liter of H2A have dissociated. Agar C alpha 1 moles per liter of H2A have dissociated, then accordingly H plus के भी आना चाहिए C alpha 1 and HA minus का भी आना चाहिए C alpha 1. Right? तो ये फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन होगा. ऐसा हो जाएगा. अब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या होगा अभी? अभी ये जो स्पीशीज है ये भी डिसोसिएट करेगा बिकॉज़ इसमें भी हाइड्रोजन है. सो सेकंड स्टेप ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या लिखूंगा मैं? HA minus dissociating to give again H plus and I'll be left with what here? A2 minus. अगर यहाँ से मैं एक H plus हटाऊं तो A2 minus बचेगा. तो ये हो जाएगा सेकंड डिसोसिएशन. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि the dissociation occurs in two steps. Why? Because it's a weak dibasic acid. अब इसको देखो कैसे लिखेंगे. HA माइनस कितना था? C अल्फा 1 प्रोड्यूस हुआ था. अब वहां से कुछ डिसोसिएट करेंगे तो at equilibrium I'll be having this minus. इतना तो था ही पहले जो प्रोड्यूस हुआ था स्टेप 1 में, ये वाला. अब यहां से डिसोसिएट करेगा कुछ. लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी अल्फा 2. इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा 2 तो इधर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. इतना बचेगा इक्विलिब्रियम पे. और अगर इसको मैं ब्रैकेट को खोलूं तो क्या हो जाएगा ये? C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2. इतने मोल्स पर लिटर ऑफ HA माइनस आर लेफ्ट बिहाइंड.
माइनस n के बाद जो होता है दैट इज अमाउंट डिसोसिएटेड। तो इतना डिसोसिएट अगर होता है तो H प्लस भी उतना ही आएगा। तो H प्लस कितना आएगा यहाँ से C अल्फा 1 अल्फा 2, बिकॉज माइनस n के बाद ये है तो इतना H प्लस आना चाहिए और उतना A2 माइनस भी आना चाहिए। बट इन द सोल्यूशन सब एक साथ है, एक ही सोल्यूशन के अंदर सब प्रेजेंट है। एंड ये दोनों के दोनों स्टेप्स हो जाने के बाद फाइनली जो स्टेट आएगा, जो कंडीशन आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेप 1 भी हो जाना चाहिए, स्टेप 2 भी हो जाना चाहिए। व्हिच मींस अगर स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों हो गए तो इसमें टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन से भी कितना रहेगा, दिस प्लस जो आया था स्टेप 1 से, which means the final concentration of H plus ions is C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2. Now, if you remember, I had told you one thing. अगर कोई एक आयन कॉमन रहता है दो इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस में, मतलब एक ही आयन, जैसे H प्लस यहाँ पे कॉमन है फर्स्ट रिएक्शन में भी सेकंड स्टेप में भी, तो जो आप फाइनल वाला कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो उस आयन का वो हमेशा सेम होता है दोनों रिएक्शंस के। So, दोनों के दोनों प्रोसेस के लिए तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा वो कॉमन रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली बोथ हैव हैपेंड। The final concentration of H plus ions is what? C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2. That is the total concentration of H plus ions in the solution at equilibrium. और at equilibrium का मतलब होता है final concentration. और जो final concentration we are supposed to write, that is going to be common for both the reactions because this is a common ion present in both the reactions. So H plus के नीचे उसका concentration होना चाहिए। अब C alpha 1 लिखना गलत हो जाएगा बिकॉज फाइनल तो C alpha 1 नहीं है, final concentration is C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2. Hence, I'm supposed to write C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2. So this is the final concentration of H plus ions in the solution. यहाँ में भी वही करना पड़ेगा, this plus this. So total H plus ions in the solution at equilibrium is this. Since H plus ions is common in both the reactions, मुझे वो final जो है वो common लिखना है दोनों के लिए। इस वाले के लिए भी यही लिखना है, इस वाले H प्लस के लिए भी यही लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो भी आयन कॉमन रहता है उस आयन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी द सेम फॉर बोथ द रिएक्शंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉमन आयन, ये भी एक कॉमन आयन है, इसमें भी ये प्रेजेंट है, इसमें भी ये प्रेजेंट है, मतलब एक ही आयन दोनों के दोनों प्रोसेस में दिखाया जा रहा है। हेंस इसका भी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो भी सेम रहेगा दोनों के दोनों रिएक्शंस में। तो क्या है इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो यही होना चाहिए दोनों के दोनों रिएक्शंस में, बिकॉज फाइनल तो इतना है ना। तो यहाँ पे वो लिख देंगे हम लोग C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2, तो ये हो जाएगा इसका। So now we can say that we have written the final concentration of every species present in the reactions. हर एक का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने लिख लिया है। So अभी हमारा इक्विलिब्रियम पे सब कुछ सही तरीके से लिखा गया है। Okay. अब अगर मैं K1 की बात करूं, what is Ka1? This 1 indicates that it is only for the first step. So K1 will be called first dissociation constant. What is the meaning of first dissociation constant? First dissociation constant का मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो डिसोसिएशन हुआ है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मैं K1 लिखूं तो कैसे लिखना पड़ेगा? Look at the first step. Product, these are the two products upon reactant. जैसे K लिखते हैं वैसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। This will be the expression. This is the expression for K1. Correct? इसमें वैल्यूज डाल दो अभी। क्या है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2। यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2। ये हो जाएगा पूरा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन।
एच ए माइनस का क्या है, ये हो जाएगा एच ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ये पूरा, तो वो लिखना पड़ेगा अभी। राइट दैट सी अल्फा 1 माइनस सी अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन H2A का कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A एट इक्विलिब्रियम? H2A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C माइनस सी अल्फा 1, तो वो लिख देंगे अभी। So this is the expression for Ka1. This is the expression for Ka1. Now remember one thing. Always remember, ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। Always remember that alpha 2 is much smaller than alpha 1. मतलब जो भी सक्सेसिव डिसोसिएशंस होते हैं हमेशा अल्फा डिक्रीज होता जाता है। मतलब क्या है इसका, अल्फा 2 और अल्फा 1 को कंपेयर करेंगे, यानी सेकंड स्टेप में अल्फा का वैल्यू अल्फा 2, फर्स्ट स्टेप में अल्फा का वैल्यू अल्फा 1, तो अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 को कंपेयर करेंगे तो अल्फा 2 विल बी मच स्मॉलर देन अल्फा 1। सो कभी भी आपको ये याद रखना है कि अगर मैं दो स्टेप्स में दिखा रहा हूँ डिसोसिएशन प्रोसेस, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, जो अल्फा 2 रहेगा वो हमेशा अल्फा 1 से बहुत छोटा रहेगा। मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए, if I multiply two small numbers, the product is even smaller. So in mathematics, if I multiply two very small numbers, the product becomes even smaller than the individual numbers. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, आप दिख रहे हैं यहाँ पे सी अल्फा 1 अल्फा 2 सी अल्फा 1 अल्फा 2, सी अल्फा 1 अल्फा 2 जो आपको दिख रहा है वो बहुत छोटा हो जाएगा, बिकॉज अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 बहुत छोटा है। So C alpha 1 alpha 2 will be extremely small with respect to C alpha 1, and hence I can ignore C alpha 1 alpha 2 with respect to C alpha 1 because C alpha 1 alpha 2 is much smaller than C alpha 1. तो अगर ऐसा है, therefore Ka1 को सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखने के लिए क्या होगा, सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए क्या होगा, C alpha 1 प्लस ये वाला स्टेप जो है ना, ये वाला एक्सप्रेशन C alpha 1 alpha 2, इसको हटा सकते हैं बिकॉज दिस इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू C alpha 1, तो C alpha 1 alpha 2 को मैं हटा दूंगा पूरा बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू C alpha 1, तो ये इस कुछ नहीं लिखेंगे इसमें। सेकंड क्या है प्रोडक्ट में, C alpha 1 माइनस C alpha 1 alpha 2, वापस वही है, C alpha 1 alpha 2 बहुत छोटा है विद रिस्पेक्ट टू C alpha 1, तो यहाँ लिख देंगे वापस C alpha 1 अपॉन C माइनस C alpha 1, ऐसा हो जाएगा। सो दिस बिकम्स द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ Ka1 जो आपको यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ दिस अल्फा 2 इज मच स्मॉलर देन अल्फा 1, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टेप 1। स्टेप 1 का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोगों ने लिखा है व्हिच इज Ka1। नाउ लेट्स कम टू Ka2। Ka2 मतलब ये वाला स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। अब इसके लिए लिखो Ka2 के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, Ka2 के लिए एक्सप्रेशन, Ka2 के लिए एक्सप्रेशन विल बी दिस, इसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन। सो Ka2 लिखूंगा मैं, सो Ka2 concentration of this into concentration of this upon concentration of this हो जाएगा सेकंड स्टेप ये वाला अपना। सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन ये हो जाएगा, that this is the second step का डिसोसिएशन। लेट्स पुट द वैल्यूज, H प्लस का कितना वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा, A माइनस का कितना वैल्यू होगा, ये वैल्यू, और HA माइनस का ये वैल्यू। So let's put the values. So H plus का डाल देते हैं, total concentration of H plus this A2 minus का concentration is this and HA minus का concentration is
ये हो जाएगा आपका Ka2 का एक्सप्रेशन। इसको वापस अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो ये सी कट जाएगा, ये अल्फा 1 और ये अल्फा 1 कट जाएगा। So this can be written as C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2 multiplied by alpha 2 upon 1 minus alpha. But we know that this is a very small value with respect to this. तो वापस मैं इसको हटा दूंगा, तो क्या बच जाएगा? बच जाएगा C alpha 1 ऐसा होगा। This becomes my modified version or oversimplified version of K2. Oversimplified version, ज्यादा सिंप्लीफाइड है, इस हो जाएगा K। तो क्या याद रखना है हमेशा हमको? हमेशा याद रखना है कि क्या क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर है। नोट फर्स्ट, alpha 2 is much smaller than alpha 1 and therefore C alpha 1 alpha 2 is almost equal to 0। ये आपको पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, Ka1 is much greater than Ka2। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो हमेशा लार्जेस्ट होता है। So K1 is always larger than K2. K1 is always larger than K2. What is K1? First dissociation constant. What is K2? Second dissociation constant. यहाँ पे K2 का क्या मतलब है? K2 का मतलब है second dissociation constant। मतलब सेकंड स्टेप में जो डिसोसिएशन हो रहा है उसके हिसाब से जो कांस्टेंट लिखा जा रहा है एसिड का, उसको बोलते हैं सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। So Ka2 is second dissociation constant. K1 is first dissociation constant. So जो पॉइंट्स याद रखने हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि alpha 2 is much smaller than alpha 1 and since alpha 2 is much smaller than alpha 1 I can straight away use this approximation। And next thing is that K1 is much greater than Ka। ये चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। Any doubt? Yes, any doubt? Any particular step you want me to repeat? अभी बस समझो, बाद में कर रहे हैं। सब लोगों ने डायप्रोटिक वीक एसिड्स की बात की। एग्जांपल ऑफ डायप्रोटिक वीक एसिड क्या है? H2CO3। एग्जांपल ऑफ डायप्रोटिक वीक एसिड then H2S। ऐसे टाइप के एसिड्स जो है वो डायप्रोटिक वीक एसिड्स है। तो मोस्ट कॉमन टू एग्जांपल्स आर दिस। और एक कौन सा है आपका? ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। So these all are examples of diprotic weak acids। तो ये जो हमने Ka1 और Ka2 के वैल्यूज निकले वो सिर्फ डाइप्रोटिक वीक एसिड्स के लिए वैलिड है? हाँ, हम लोगों ने सिर्फ H2A के लिए निकाला है ना, इसको लेकर रेफरेंस निकाला है ना। ओके सर। So these are only for diprotic weak acids। Examples of some diprotic weak acids are H2CO3, H2S, H2C2O4। ये तीन सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल्स है डायप्रोटिक वीक एसिड्स के। अब एक ट्राइप्रोटिक वीक एसिड करके देखते हैं तो सर क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। ट्राइप्रोटिक वीक एसिड, ये डायप्रोटिक का था।
सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका क्या है? H3PO. This is the most common example of triprotic acid. इसका चलो स्टार्ट करते हैं. हाउ डू यू वांट मी टू शो इट? H3PO4 का दिखाना है कि H3A करके दिखाना है? H3A. H3A करके दिखाना है. तो एक A क्या है यहाँ पे हमारे लिए? अगर मैं H3PO4 लूं तो A is nothing but A will be PO4. PO4. मतलब PO4 3 minus is the anion and H plus is the cation. वैसे लिखा जाए. Anyway, H3A करके दिखा रहा हूँ मैं. So H3A. फर्स्ट डिसोसिएशन दिखा रहा हूँ मैं अभी. तो क्या होगा? एक H प्लस हटा दिया तो जो बच जाएगा H2A minus. ऐसा हो जाएगा. T is equal to 0 पे C मोल्स पर लीटर है. T is equal to इक्विलिब्रियम पे रहेगा कुछ पहला. क्या रहेगा? C लिख के सीधा 1 माइनस अल्फा 1. ये हो जाएगा आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3A एट इक्विलिब्रियम. इसको अगर सिंपलीफाई करूंगा तो हो जाएगा C minus C alpha 1. So alpha 1 is the degree of dissociation in this step. Minus 10 के बाद जो होता है that is amount dissociated. Hence I can say C alpha 1 moles per liter of H3A I have dissociated. Step. And hence how many moles of H plus should come out? C alpha 1 moles of H plus should come out. So C alpha 1 H plus आएगा और ये भी C alpha 1 आएगा H2A minus. हो गया फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप क्या होगा? अभी ये डिसोसिएट करेगा फिर से तो H2A माइनस को लेके आगे बढ़ेंगे. तो H2A माइनस will dissociate. How? H plus and ऐसा करेक्ट. तो इक्विलिब्रियम पे इसका क्या रहेगा? H2A माइनस का ये डिसोसिएट करेगा. ऑलरेडी C alpha 1 मोल्स पर लीटर आ चुके हैं. पहले वो लिख देंगे. So T equal to TEQ. तो क्या आएगा? C alpha 1 आ चुका था यहाँ पे और अभी कुछ डिसोसिएट करेगा. So let that be alpha 2. तो ऐसा लिख देंगे. ब्रैकेट में डालना होता है 1 माइनस अल्फा. तो इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे? C alpha 1 1 माइनस अल्फा 2. अगर इसको ब्रैकेट को मैं खोलूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? C alpha 1 माइनस ये आएगा. माइनस 10 के बाद जो होता है दैट इज अमाउंट डिसोसिएटेड. अगर इतने डिसोसिएट हुए हैं H प्लस भी इतने आएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे C alpha 1 अल्फा 2 और यहाँ पे भी C alpha 1. ये हो जाएगा सेकंड डिसोसिएशन. तो ये हो जाएगा आपका सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप. अब इसमें थर्ड स्टेप पॉसिबल है बिकॉज़ एक ट्राइप्रोटिक है. वापस दिस कैन अंडरगो डिसोसिएशन. तो वो दिखाएंगे. ऐसा हो जाएगा थर्ड स्टेप. So at equilibrium what will I have? पहले इसका इनिशियल लिखना है. इनिशियल मतलब जो पहले पैदा हुआ था सेकंड स्टेप में. कितना पैदा हुआ था सेकंड स्टेप में? इतना पैदा हुआ था. C alpha 1 अल्फा 2. यहाँ लिखेंगे C alpha 1 अल्फा 2. उसके बाद क्या ब्रैकेट 1 minus alpha 3. But alpha 3 is the degree of dissociation in this step. इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस 10 के बाद जो है वो ये है. तो H प्लस कितना आएगा? उतना ही आएगा इस स्टेप से और ये भी उतना ही आएगा इस स्टेप से. बट इसके बाद हमारा क्या काम होता है? देखना होता है कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं सब रिएक्शंस में. देखो ध्यान से. H प्लस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. तो क्या करना है?
क्या करना है, कॉमन है H प्लस तो हर जगह उसका कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करना है। हाँ, मतलब हर जगह वो टोटल लेना पड़ेगा जहां जहां H प्लस है, तो टोटल लगा देंगे अभी। तो इसके लिए भी लिखना पड़ेगा टोटल, दैट इज इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, तो कर दो, हो गया। ये पूरा हो गया H प्लस हर रिएक्शन के लिए, सिर्फ इस रिएक्शन के लिए नहीं, हर रिएक्शन के लिए। ये जाएगा आपका हर रिएक्शन, हो गया टोटल H प्लस हर रिएक्शन के लिए। यहाँ पर भी वही होगा, हो गया H प्लस कॉमन हर रिएक्शन के लिए लिख दिया हम लोगों ने टोटल फाइनल। दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एट इक्विलिब्रियम। ओके, H प्लस से कॉमन कर दिया हर जगह। ओके, अब सेकंड क्या है कॉमन चीज, ये वाली चीज H2A माइनस इधर भी है, H2A माइनस इधर भी है। क्या करना है, क्या करना है H2A माइनस के लिए, ये भी कॉमन है ना, यहाँ पे सेकंड स्टेप में भी है, यहाँ पे भी है, फर्स्ट स्टेप में भी है, तो क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में -C अल्फा 1 अल्फा 2। हाँ, मतलब जो भी फाइनल है ना सेकंड स्टेप में, ये पूरा फाइनल है, तो उसी को फर्स्ट स्टेप में भी लिखना पड़ेगा। क्या है ये है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A माइनस इन द सेकंड स्टेप, सेम इज गोइंग टू बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A माइनस इन द फर्स्ट स्टेप एज वेल। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1, ये हो जाएगा H2A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ये पूरा हो जाएगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, हो गया कॉमन। नाउ नेक्स्ट कॉमन इज दिस Ha2 माइनस, ये सेकंड स्टेप में भी है, ये थर्ड स्टेप में भी है। क्या करना चाहिए, सेम लिखना चाहिए। ये वाली चीज है Ha2 माइनस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो इसी चीज को लिखना पड़ेगा सेकंड स्टेप में भी। सो C अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2, यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और कुछ कॉमन है नहीं। So now we have successfully written all the concentrations. Right. तो क्या हो जाएगा वापस K1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो K1 will be equal to H plus, ऐसा हो जाएगा K1 का वैल्यू। लुक एट द फर्स्ट स्टेप, ये है फर्स्ट स्टेप आपका, तो ये हो जाएगा concentration of this at equilibrium into concentration of this at equilibrium upon concentration of H3 at equilibrium। तो डाल सकते हो अभी ये पूरा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये डालोगे, H2A माइनस के लिए ये डालोगे, और H3 के लिए ये डालोगे, तो आ जाएगा फिर। आई एम नॉट पुटिंग इट नाउ, यू कैन पुट इट एंड सी। सेकंड स्टेप के लिए Ka2 लिखना पड़ेगा, Ka2 के लिए क्या लिखेंगे, concentration of H plus ions into concentration of Ha2 minus upon concentration of H2A minus, right। तो ये सब डालोगे वैल्यू H प्लस के, Ha2 माइनस के और H2A माइनस के। H2A माइनस के क्या है, H2A माइनस के दिस इज द concentration of H2A minus, so Ka2 I can put, डालो ऐसा करके।
K3 के लिए लिखोगी so K3 थर्ड स्टेप क्या लिखना चाहिए, this into this upon this ऐसा हो जाएगा। So this is going to be the dissociation constant for each step. So K1 फर्स्ट स्टेप के लिए, K2 सेकंड स्टेप के लिए, K3 थर्ड स्टेप के लिए। वापस क्या होगा नोट में, क्या होगा, alpha 3 is much smaller than alpha 2 which is much smaller than alpha 1, ऐसा हो जाएगा, right? Therefore C alpha 1, alpha 2, alpha 3 is almost negligible. Next क्या होगा, Ka1 is always greater than Ka2 और Ka2 भी ग्रेटर रहेगा Ka3 से। मतलब क्या होता है, हमेशा फर्स्ट सबसे ज्यादा रहता है और लास्ट सबसे कम रहता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। और अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, overall dissociation constant of H3A will be K1 multiplied by K2 multiplied by K3। अगर ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो फिर ये आपका हो जाएगा, overall dissociation constant is always the product of all the successive dissociation constants। सिमिलरली जो पहला वाला स्टेप किया था हम लोगों ने, पहला वाला जो केस किया था डाइप्रोटिक के लिए, उसमें भी ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, इसमें भी लिख देंगे यहाँ पे ओवरऑल dissociation constant will be equal to what? What should I write for this? Ka1 into Ka2। हाँ, क्योंकि इसमें दो ही है डिसोसिएशन, ये स्टेप 2 था, this was step 2 and this was step 1। so K1 और K2, एक K1 था एक K2 था, तो K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 कर दूंगा तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो डायप्रोटिक के लिए क्या है, K1 K2 दो ही आएंगे, ट्राइप्रोटिक के लिए आपके तीन आएंगे, K1 K2 K3, तीन डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। So the overall dissociation constant is always K1 into K2 for a diprotic weak acid. The overall dissociation constant is equal to K1 into K2 into K3 for a triprotic weak acid. और हमेशा अल्फा 2 अल्फा 1 से छोटा होगा और अल्फा 3 अल्फा 2 से छोटा होगा। एंड सिमिलरली K1 सबसे बड़ा होगा फॉलोड बाय K2 फॉलोड बाय K3, यानी K1 सबसे बड़ा होगा और बाकी उससे कम। एग्जाम्पल ऑफ ट्राइप्रोटिक वीक एसिड आपको याद रखना है H3PO4, सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल H3PO4 होता है ट्राइप्रोटिक वीक एसिड का। H3PO4 दिस इज अ ट्राइप्रोटिक वीक एसिड, इसका नाम है ऑर्थो तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको H3PO4।
एंड डायप्रोटिक वीक एसिड के कॉमन एग्जांपल्स कौन से होते हैं? ये तीन होते हैं, H2CO3, H2S एंड H2C2O4. H2CO3 is what? Carbonic acid. H2CO3 is carbonic. H2C2O4 is oxalic. ऐसे सब है. Any doubt in any particular step? Let me know if you have any doubt right now. Yes, any doubt anybody has? Okay. If there is no doubt, then we can do a question. Question करते हैं. सर डाइप्रोटिक के लिए तो Ka1 और Ka2 के लिए कुछ हमारे पास सिंप्लीफाइड फार्मूला है, बट डाइप्रोटिक के लिए तो नहीं है, तो उसके लिए पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. नहीं, वो मैंने डाला नहीं ना, डाल के देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा. वो अभी करेंगे, क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा. ओके सर. Okay, let's do a question. This is a question. Calculate pH of 0.1 molar H2S solution. आपको K1 देके रखा है, आपको K2 देके रखा है. So H2S is nothing but a weak diaprotic acid. Just now we did. ये 0.1 जो देके रखा है वो क्या है? Initial यानी C देके रखा है. So C. K1 देके रखा है, K2 देके रखा है. तो चालू करते हैं. जब भी K1 K2 देके रखेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएट करना है. स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे किया था अभी. So स्टेप 1 ये है. चेक करो स्टेप 1 में कोई डाउट है किसी को? स्टेप 1 है ये. Yes, tell me if you have any doubt in step 1. पहले ऐसा आएगा स्टेप 1 से C alpha 1 moles per liter of dissociated, C alpha 1 moles per liter of H plus will be formed and also C alpha 1 moles of HS minus will be formed. ये स्टेप 1 को अगर सिर्फ देखा जाए तो ऐसा होगा. अब स्टेप 2 की अगर बात करें तो ये भी डिसोसिएट करेगा. तो स्टेप 2, दिस इज स्टेप 2. तो HS माइनस कितना बना था यहाँ पे? C alpha 1 बना था. तो यहाँ पे भी C alpha 1 माइनस अल्फा 2, फिर H प्लस बनेगा C alpha 1 अल्फा 2 बाय, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा C alpha 1 माइनस C alpha 1 अल्फा 2. तो माइनस के बाद जो होता है वो डिसोसिएटेड अमाउंट होता है और उतना ही अमाउंट H प्लस प्रोड्यूस होगा. तो H प्लस कितना प्रोड्यूस हो गया और सल्फाइड आयंस भी इतने प्रोड्यूस हो गए. लेकिन मैंने बोला था ना, जो कॉमन होता है उसका सेम होना, सेम कंसंट्रेशन होता है. तो सेम कंसंट्रेशन मतलब H प्लस यहाँ से भी प्रोड्यूस हुआ, H प्लस यहाँ से भी प्रोड्यूस हुआ. Hence total concentration of H plus ions will be the sum of this and whatever is produced in the other step. इसके लिए ये हो जाएगा total concentration of H plus ions in the solution. Similarly HS minus के लिए भी final concentration of HS minus कितना है? इतना है C alpha 1 minus C alpha 1 alpha 2. तो यहाँ पे भी वही डालना पड़ेगा C alpha 1 minus C alpha 1 alpha 2. ये आ जाएगा HS minus का concentration. अब डालो K1 में वैल्यूज. ये मैंने बोला था, since K2 is much smaller than K1, therefore alpha 2 is also much smaller than alpha 1. This means that we can neglect this entire thing with respect to C alpha 1. Also, we can neglect this entire thing with respect to C alpha 1. तो इसको भी 0, यहाँ पे इसको 0. मतलब क्या? मैथमेटिक्स में अगर देखो मैं समझाता हूँ इसका मतलब. If I tell you 4 plus
0.02. This is nothing but 4.02 फाइनल आंसर. अगर 4 प्लस 0.02 करूं मैं तो 4.02 आएगा. अब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 ही हुआ ना, बिकॉज 0.02 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 4. तो 4 प्लस 0.02 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4. मतलब क्या हुआ, मतलब 0.02 को मैंने ऐड किया या नहीं किया उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. सेम थिंग आई एम टेलिंग हियर आल्सो. सी अल्फा 1 अल्फा 2 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या ना करो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सी अल्फा 1. So C alpha 1 alpha 2 can be ignored and hence मैंने उसको सीधा 0 कर दिया. So C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2 is almost equal to C alpha 1 only. Similarly C alpha 1 minus C alpha 1 alpha 2 is almost equal to C alpha 1. अब K1 यूज करेंगे, ये हो जाएगा K1 का एक्सप्रेशन. K1 is given to you directly. Put the values HS H plus का HS minus का और H2S का डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका K1. अब अल्फा 1 भी छोटा है 1 के हिसाब से. So straight away I can write this as C alpha 1 square because alpha 1 is much smaller than 1. तो ऐसा आ जाएगा फिर. तो यहाँ से अल्फा 1 आ जाएगा. वन माइनस अल्फा 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. सेम लॉजिक से अल्फा 1 बहुत छोटा है 1 के हिसाब से, तो 1 माइनस अल्फा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. तो ऐसा आ जाएगा अल्फा 1 को सॉल्व करोगे. अब स्टेप 2 की अगर बात करें तो K2 को यूज करना पड़ेगा, राइट. K2 को यूज करना पड़ेगा. So Ka2 क्या होगा, concentration of H plus into concentration of sulfide, that is S2 minus upon concentration of HS minus. ये हो जाएगा K2. H plus का concentration तो ये है पूरा. This entire thing is concentration of H plus ions. Sulfide का concentration is this, and HS minus का concentration is this. C alpha 1 minus C alpha 1 alpha 2. Put the values. K2 is given to you in the question directly. So I can use that again. अब क्वेश्चन में pH पूछा था, तो pH is minus log of H plus. अब H plus कितना है, H plus एक्चुअली इतना है C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2. ये हो जाएगा आपका H plus का कॉन्सेंट्रेशन टोटल. बट आई टोल्ड यू ये छोटा है बहुत इसके हिसाब से, तो स्ट्रेट अवे इसको मैं लिख सकता हूँ C alpha 1 plus 0, that is C alpha 1. So H plus is nothing but C alpha 1. C क्वेश्चन में देके रखा है, अल्फा 1 अभी निकाला है हम लोगों ने. यहाँ से H plus का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा C alpha 1. When you put the value of C and you put the value of alpha 1, you will get the value of C into alpha 1. कितना आया C alpha 1 का वैल्यू 10 to the power of -4. Now straight away pH is minus log of H plus ions the concentration. So pH is minus log of 10 to the power of -4, which is 4. इसी क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस इन द अबव प्रॉब्लम. तो K2 यूज करेंगे जो दिखा रहा था मैं, K2 यानी सेकंड स्टेप. दिस इज द सेकंड स्टेप. यहाँ पे डालोगे वैल्यूज K2 के एक्सप्रेशन में.
ऑलरेडी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ चुका है। कितना है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इस सम में? 10⁻⁻⁴. This is concentration of H plus ions. So I can use the value of concentration of H plus ions directly when I know this. ऐसा हो जाएगा इसका मतलब. So this is Ka2. (10⁻⁻⁴) is concentration of H plus ions जो निकाला था सम में. प्रीवियस सम क्या ही है ना, ये सम भी बेस्ड ऑन प्रीवियस सम ही है. बिकॉज़ क्या बोला है क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस इन द अबव प्रॉब्लम. अबव प्रॉब्लम मतलब सेम थिंग, उसी प्रॉब्लम जो ऊपर लिखा है उसी के अंदर सब कुछ करना है. सो द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, डेटा विल आल्सो रिमेन द सेम because they have mentioned in the above problem. तो above problem के हिसाब से K2 लिखा जाएगा, यह जाएगा K2 का एक्सप्रेशन. पुट द वैल्यूज, क्या जाएगा? Again I can say 1 minus alpha 2 is approximately equal to 1 because alpha 2 1 के हिसाब से बहुत छोटा है. 1 minus alpha 2 is approximately equal to 1. Why? Because alpha 2 is much smaller as compared to 1. तो ऐसा जाएगा. ये यूज करोगे अप्रोक्सीमेशन तो सीधा अल्फा 2 का वैल्यू आ गया. You can clearly see alpha 2 is such a small value, 10 to the power of -10 आ रहा है, तो 1 के हिसाब से तो बहुत छोटा है. अब सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन था ये C alpha 1 alpha 2. You know the value of C, you know the value of alpha 1, you know the value of alpha 2. Put the values, you will get the concentration of sulfide ions. So क्या लिखना है? सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C alpha 1 alpha 2. C का वैल्यू क्वेश्चन में देके रखा है 0.1. अल्फा 1 हम लोगों ने निकाला था 10 to the power of -3 और अल्फा 2 अभी निकाला 10 to the power of -10. आ गया ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस. सर यहाँ पे आपने अल्फा 2 का वैल्यू पहले निकाला और फिर उस पे पुट किया ना S2 माइनस. तो ये डायरेक्टली भी तो कर सकते थे, जैसे Ka2 का जो एक्सप्रेशन लिखा है आपने, concentration of H plus into concentration of S2 minus upon concentration of HS minus. हाँ, but तो HS minus का उसमें concentration, हाँ वही मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें आपने कैंसिल कर दिया ना C alpha 1. हाँ हाँ कैंसिल नहीं करके सिर्फ C को अच्छा हाँ समझा समझा क्या बोल रहा था मैं. पहले हमेशा अल्फा निकाल लिया करो. रिमेंबर दिस, हर एक समय ना पहले अल्फा निकाल लो और फिर आगे बढ़ो. दैट्स अ बेटर वे टू गो अहेड. Because sometimes they ask you what is the value of alpha 2, ऐसा ही पूछते हैं, तो वो निकाल लो हमेशा पहले. ओके सर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस अल्फा 1 अल्फा 2 निकल गए. सी तो क्वेश्चन में देके रखा है. पुट द वैल्यूज, सो दिस बिकम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस. check the full sum and total. दिखा लो मैं शुरुआत से ये सम. This is the sum.
Okay, done. Any doubt? Yes, any doubt? Okay. Next sum. Now try to solve this alone. Question is, calculate calculate concentration of phosphatase in 0.1 molar H3PO4 solution. कोशिश करो इसको. Given Ka1 of H3PO4 Ka2 of H3PO4 Ka3 of H3PO4. Start. Phosphatase का concentration निकालने को बोला है. Yes, start. I'll discuss after 5 minutes. जितना हो रहा है करो.
Okay, so let's start. First step. Yes, tell me how I should start. ऐसे स्टार्ट करना है, करेक्ट? यहाँ पे 0.1, फिर यहाँ पे यस, क्या लिखूं यहाँ पे? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा 1, ये हो जाएगा because c is 0.1 given in the question. This will be like this and ये ऐसा हो जाएगा. Next. Then कितना था H2PO4 माइनस का 0.1 अल्फा 1, तो वहां से लिखना पड़ेगा 0.1 अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 which is 0.1 alpha 1 minus 0.1 alpha 1 alpha 2, ऐसा हो जाएगा. तो H2PO4 माइनस का इतना कंसंट्रेशन इधर होगा, तो इधर भी उतना ही होगा 0 अल्फा 1 माइनस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2, कॉमन है वो आए, तो दोनों जगह पे सेम कर दिया दोनों जगह पे. अब H प्लस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 इधर से आया और HPO4 2 माइनस भी उतना ही आया 0.1 अल्फा 1 alpha 2. Next क्या होगा step? Now this will undergo dissociation. That is HPO4 2 minus. So HPO4 2 minus will undergo the third dissociation, giving us this. HPO4 2 minus कितना था? इतना था. तो ये dissociate करेगा अभी. So at equilibrium, I'll be left with this into 1 minus alpha 3. सॉल्व करेंगे तो 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2. H प्लस का भी उतना ही आएगा 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसका भी उतना ही आएगा 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2. लेकिन H प्लस तो टोटल होना होता है हमेशा, तो दिस प्लस दिस टोटल H प्लस हो गया. इसको भी वही लिखना पड़ेगा. और यहाँ को भी वही लिखना पड़ेगा. H प्लस कॉमन आ गया हर किसी में, और HPO4 2 माइनस भी कॉमन है, तो इसका भी फाइनल HPO4 2 माइनस का ये होगा, तो यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा मुझे. दिस इज गोइंग टू बी द कंसंट्रेशन. हर किसी का कंसंट्रेशन लिख दिया है, करेक्ट, राइट. K1 लिखो अभी. K1 H plus into concentration of H2PO4 minus upon concentration of H3PO4, ये हो जाएगा K1 पूरा. Check K1. This is K1 first step. इसके हिसाब से K1 लिखा. अब हमें पता है कि अल्फा 3 अल्फा 2 से बहुत छोटा है और अल्फा 2 अल्फा 1 से बहुत छोटा है,
तो स्ट्रेट अवे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 को इग्नोर करो और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को भी इग्नोर करो विद रिस्पेक्ट टू 0.1 अल्फा 1। तो जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है ये पूरा जो है इसको अप्रोक्सीमेटली आई कैन राइट एज 0.1 अल्फा 1 because I'll ignore this and this because the product of alpha 1 and alpha 2 will be even smaller. The product of alpha 1, alpha 2, alpha 3 will also be very small. Correct? ऐसा हो जाएगा। Let's go ahead. इसको भी अप्रोक्सीमेटली पूरा टोटल के बदले में लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली 0.1 अल्फा 1। इसको भी पूरा टोटल के बदले में लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली 0.1 अल्फा 1। तो डाल दो वैल्यूज अभी यहाँ पे क्या आएगा 0.1 अल्फा 1 H2PO4 माइनस का वैल्यू क्या है H2PO4 माइनस का है 0.1 अल्फा 1 माइनस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2। ऐसा हो जाएगा और इसका क्या है ये हो जाएगा K1 K1 का वैल्यू देके रखा है क्वेश्चन में 10⁻⁻3। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो 0.1 अल्फा 1। Okay, again this can be ignored with respect to this, so straight away I will write only this much क्योंकि ये 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 को मैं इसके हिसाब से इग्नोर कर सकता हूँ ना अपॉन 0.1 ऐसा हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लिया 0.1 को अब 0.1 कट जाएगा now 1 minus alpha 1 is approximately equal to 1 why because alpha 1 1 से बहुत छोटा है therefore 1 minus alpha 1 will be approximately equal to 1। तो सीधा क्या आ जाएगा 10 to the power of -3 is equal to 0.1 alpha 1 square। So alpha 1 square is 10 raised to -2 और alpha 1 is equal to 10 raised to -1 which is 0.1। तो alpha 1 का वैल्यू निकाल लिया। Right? Therefore, concentration of H plus ions, total concentration of H plus ions ये है, this is the concentration of H plus ions, but again these two can be ignored with respect to this, तो सीधा इनको हटा दो बच जाएगा सिर्फ इतना। सी क्वेश्चन में देके रखा है अल्फा 1 अभी निकाला हम लोगों ने 0.1, so this becomes the concentration of H plus ions। H plus का concentration आ गया, right? H plus का concentration आ गया। Now step 3 को अगर देखेंगे तो this is step 3। This is step 3, करेक्ट। इसके लिए K3 लगाओगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेप 3 में आपको चाहिए PO4 माइनस का concentration as per the question। The question has asked us to find out the concentration of PO4 minus ions। तो मैं जब K3 लगाऊंगा तो K3 लगाने के लिए मुझे इसका concentration चाहिए, तो इसका concentration कहाँ से मिलेगा? इसका concentration मुझे मिलेगा सेकंड डिसोसिएशन से, राइट? इसका मुझे concentration मिलेगा सेकंड डिसोसिएशन से, तो सेकंड डिसोसिएशन से निकालना पड़ेगा मुझे इसका concentration, राइट? सो लेट्स डू द सेकंड डिसोसिएशन। तो इसका मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टेप में K1, K2, K3 को यूज करना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पे सिर्फ फिलहाल K1 यूज किया है, I have used only K1, now I need to use K2, so K2 मैं am using now। What is K2? This will be K2
तो सीक्वेंस में ही जाना है आपको। K2 हो जाएगा ये, राइट। H में से कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है, दैट इज 0.01। इसका कितना है, इसका भी डोंट नो, इसका ऐसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कितना है HbO2 माइनस का 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये है ना 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, वो लिख देंगे 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, क्या आ जाएगा HbO2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। और H2PO4 माइनस का कितना है चेक करो, H2PO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज दिस मच 0.1 अल्फा 1 माइनस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2, वो लिखेंगे आप ऐसा, राइट। K2 का एक्सप्रेशन विल बी दिस, this will be the expression for K2, put the values, H plus का already we know 0.01, HbO4 2 minus का we know how much, this is HbO4 2 minus का, but again I can ignore this thing with respect to this because alpha 1 alpha 2 alpha 3 जो प्रोडक्ट है वो बहुत छोटा आ जाएगा with respect to this, तो इसको स्ट्रेट अवे में इग्नोर कर सकता हूँ, यहाँ पे सीधा लिख देंगे 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन दिस दैट इज 0.1 अल्फा 1, वापस मैं इस पूरी चीज को इग्नोर कर सकता हूँ with respect to this because again the product alpha 1 alpha 2 is much smaller as compared to this, तो सीधा इसको मैं हटा दूंगा और लिख दूंगा ये ऐसा हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0.01 अल्फा 2, 0.01 अल्फा 2 is equal to क्या आया Ka2, Ka2 is given to us in the question as this, तो यहाँ से अल्फा 2 आ जाएगा, this is going to be the value of alpha 2, right, अल्फा 2 आ गया हमारे पास। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HbO4 2 माइनस डाल सकते हैं, कितना था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HbO4 2 माइनस, चेक करो ये था ना, अब इसमें इसको तो हटा दिया तो 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 निकाला था हम लोगों ने 0.1, अल्फा 2 निकाला 10 to the power of -5, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 10⁻⁻⁷ गुना। Now you can use step 3, which is the final step. So this is step 3. इसमें लिखा था हम लोगों ने क्या, H plus का तो ऑलरेडी भी नो दैट इज 0.01, HbO4 माइनस का भी निकाला 10⁻⁷, और इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं, बट K3 पता है, so K3 is what, K3 will be this, K3 का value is given as 10 to the power of -12, H plus is 0.01 which we have found out much earlier, PO4 का पता नहीं निकालना है, वही क्वेश्चन में पूछा है,
और इसका भी निकाला था 10 to the power of -7 H2O4 का। यहाँ से आ जाएगा PO4 का। This is the concentration of PO4 3-। आ गया। Answer is 10 raised to -17। Any doubt? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में बोला what is concentration of OH minus ions, इसी क्वेश्चन में बोला, yes, what will you do? What is concentration of hydroxyl ions in this? How will you find out OH minus? क्या तरीका होता है OH minus निकालने का? (14 minus concentration of H plus). No. We know that for any solution, H plus into OH minus the concentrations is equal to 10 to the power of -14। तो अगर H plus का हमें पता है तो OH minus का हमें निकल जाना चाहिए। ये तो हमेशा ट्रू होता है ना, at 25 degrees Celsius। H plus का निकाला था पहले, कितना था H plus का? ये था ना 0.01 मोलर H plus का, तो डाल दो H plus 0.01। So H plus का 0.01, OH minus का पता नहीं, यहाँ से आ जाएगा। Therefore, concentration of OH minus is equal to 10 to the power of -14 upon 0.01. This is the concentration of hydroxyl ions. तो अगर आपको H plus पता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो आप इमीडिएटली OH minus निकाल सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हमेशा ट्रू होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो H plus हमारे पास पहले से था, H plus का कंसंट्रेशन वाज 0.01, तो OH minus का कंसंट्रेशन पता नहीं है, तो यहाँ से निकल जाएगा OH minus। ओके, तो हम लोगों ने देखा डायप्रोटिक एसिड एंड ट्राइप्रोटिक एसिड्स के लिए हाउ वी फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कंसंट्रेशंस एंड एवरीथिंग। ओके, एनी डाउट इन दिस सम्स? डाउट है किसको? तो बताओ सर, ये प्रोसेस तो बहुत लंबी है। हाँ, तो इसमें तो चांस भी है अगर गलत होने का। हाँ बीच में कैलकुलेशन वगैरह, तो फिर ऐसे कुछ इसमें इजी ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, थोड़े से इसमें यही है कि अप्रोक्सीमेशन से आप इग्नोर करते जाओ, जैसे मैंने इग्नोर किया है हर चीज को। यहाँ पे जैसे इसको इग्नोर किया है, इसको इग्नोर किया है, और कोई मेथड नहीं। बट वैल्यूज ऐसे है ना जिसमें कुछ कैलकुलेटर की जरूरत ना है। वैल्यूज ऐसे है जो सीधा कट रहे हैं या 10 के पावर से, इसमें वैल्यूज हमेशा ऐसे ही रहते हैं। You don't have to use calculator. I mean, you don't need to use calculator. तो वैल्यूज स्ट्रेट पावर होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 5 ऐसे। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट। सो फार हम लोगों ने सिर्फ देखा है सॉल्यूशन में एक ही
डायप्रोटिक एसिड है, या सोल्यूशन में एक ही ट्राइप्रोटिक एसिड है, या सोल्यूशन में एक ही मोनोबेसिक एसिड, मतलब एक ही है, कोई मिक्सचर नहीं देखा है। अब मिक्सचर पे आते हैं, ये क्या है मिक्सचर? मिक्सचर का मतलब क्या, दो चीजें प्रेजेंट है उसी सोल्यूशन के अंदर। मिक्सचर ऑफ टू वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स की बात अगर करें, so let HX and HY be two weak monoprotic acids। आपको दिख रहा है HX भी वीक बोला है, HY को भी वीक बोला है, दोनों के दोनों मोनोप्रोटिक है। मोनोप्रोटिक मतलब एक ही H+ निकल सकता है। तो अगर दोनों के दोनों प्रेजेंट है सोल्यूशन में तो क्या करना होगा? If there is a mixture of two weak monoprotic acids, then what do we have to do? So let HX and HY be two weak monoprotic acids and both are present in the same mixture। And यहाँ पे K1 को हम लोगों ने बोला है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HX and K2 is dissociation constant of HY। तो यहाँ पे कोई सक्सेसिव डिसोसिएशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोनोप्रोटिक है। सक्सेसिव डिसोसिएशन होने का इसमें कोई स्कोप नहीं है, बोथ आर मोनोप्रोटिक। तो यहाँ पे माना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HX is K1 and डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HY is K2। तो दो सारा मिक्सचर से एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग? मानो HCOOH भी है और HF भी है, दोनों अगर एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये दोनों वीक मोनोप्रोटिक हो गए, बोथ आर वीक, बोथ आर मोनोबेसिक एसिड्स। या फिर मानो एक सोल्यूशन के अंदर मिक्सचर है HCOOH प्लस CH3COOH का, तो ये भी एक मिक्सचर है जहाँ पे दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स है। करेक्ट। तो ऐसे अगर दो एसिड्स है एक सोल्यूशन में तो हाउ डू वी गो है, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। सो मिक्सचर ऑफ टू वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स जब रहेगा तो एग्जांपल इसलिए मैंने दे दिया, ये एक एग्जांपल मान सकते हो आप, अ मिक्सचर ऑफ टू वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स। ये वाला भी एक एग्जांपल मान सकते हो आप, अ मिक्सचर ऑफ टू वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स। Yes, give me another example where two weak monobasic acids are there. Another example दो जहाँ पे weak monobasic acids है तो। HNO2 plus HCN। Okay, yes. HCN plus HNO2, yes, very good। ये भी दोनों weak है, तो ये भी एक mixture of weak monobasic acids है। Next, और एक ऐसा कर सकते हैं हम लोग, C6H5COOH plus CH3COOH। This is also a mixture of two weak monoprotic acids। करेक्ट। तो ऐसा आपको दिखना चाहिए। So let's see। तो C1 माना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX का और C2 माना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HY का। मतलब मिक्सचर में ही C1 है आपका मोलारिटी ऑफ HX और C2 है मोलारिटी ऑफ HY। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से होता है, इसका फॉर्मूला ओके, square root of C1 K1 plus C2 K2। This is a formula for finding concentration of H plus ions in the mixture of two weak monobasic acids। So the formula for finding out concentration of H plus ions is square root of C1 K1 plus C2 K2। Derivation is not required and hence I have not given the derivation। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि जब मिक्सचर ऑफ टू वीक मोनोबेसिक एसिड्स है तो उसके अंदर जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ C1 K1 प्लस C2 K2। मतलब पहले C1 K1 प्लस C2 K2 निकालोगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लोगे।
दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द मिक्सचर। pH निकालने बोला तो H+ निकल जाने के बाद pH विल बी माइनस log ऑफ H+ आयंस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात ये है K1 upon K2 is alpha 1 by alpha 2. This is the first thing. Ka1 upon Ka2 is alpha 1 by alpha 2. What is alpha 1? Alpha 1 will be degree of dissociation of Hx. Alpha 2 is degree of dissociation of Hy. दो एसिड्स है ना, एक Hx और एक Hy, दोनों वीक है। तो एक का डिसोसिएशन मान लिया अल्फा 1, दूसरे का डिसोसिएशन मान लिया डिग्री अल्फा 2। सो अल्फा 1 इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Hx, अल्फा 2 इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Hy। आप किसी को भी Hx मानो, किसी को भी Hy मानो, वो आपके ऊपर है। दो एसिड्स में से एक को Hx मानना है, दूसरे को Hy मानना है। तो ये पहला एक फॉर्मूला होता है कि K1 upon K2 is equal to alpha 1 upon alpha 2, where K1 is dissociation constant of Hx, K2 is dissociation constant of Hy, because there are two acids, एक को रिप्रेजेंट किया है 1 से, दूसरे को 2 से। एंड जो H+ का कंसंट्रेशन होता है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है C1 alpha 1 plus C2 alpha 2। This formula can also be used to find out the concentration of H+ ions. या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो फॉर फाइंडिंग आउट कंसंट्रेशन ऑफ H+ ions, या फिर आप ये वाला यूज करो। दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन। सो H+ का कंसंट्रेशन ये भी है, H+ का कंसंट्रेशन निकालने का तरीका ये भी है। इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है इस वाले फॉर्मूला में, देयर इज नो स्क्वायर रूट इन्वॉल्वड। थर्ड फॉर्मूला अल्फा 1 निकालने का तरीका क्या है? दिस इज द टेक्निक टू फाइंड आउट अल्फा 1। अल्फा 1 इज इक्वल टू Ka1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। अल्फा 1 इज इक्वल टू Ka1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। और H+ आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता है वो तो फार्मूला नंबर 2 से दिख गया, तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। फार्मूला नंबर 2 जो है वो H+ आयंस के कंसंट्रेशन के लिए है ना, तो उसको मैंने डाल दिया है यहाँ पे, तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। So alpha 1 is equal to Ka1 upon concentration of H+ ions. Similarly, alpha 2 will be equal to Ka2 upon concentration of H+ ions. तो ये जो फॉर्मूले हैं चारों के चारों, these four formulae are applicable for a mixture consisting of two weak monobasic acids. एक Hx माना है, एक को Hy माना है। एक सम करते हैं इसको। Let's do a sum. This is the sum. Calculate pH of a solution obtained by mixing. मिक्सिंग मतलब मिक्सचर हो गया, मिक्सिंग का मतलब मिक्सचर हो गया। कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.02 मोलर HA एंड 0.2 मोलर HB सॉल्यूशंस। HA एंड HB आर एसिड्स। कैसे पता समझ में आया कि एसिड्स है? क्वेश्चन में देके रखा है Ka के वैल्यूज। अब Ka के वैल्यूज तो वीक एसिड्स के लिए ही होते हैं, व्हिच मींस बोथ HA एंड HB आर वीक एसिड्स, बिकॉज़ जिसका भी Ka दिया रहेगा वो एसिड वीक होगा। Hence, I can say both HA and HB are weak acids because their values of Ka are given. Okay. तो K देके रखा है दोनों का, so we can say that both are weak. Both are weak and both are monoprotic. कैसे समझ में आया मोनोप्रोटिक है? एक ही हाइड्रोजन है ना, तो मोनोबेसिक हो गया। दोनों के दोनों मोनोबेसिक एसिड्स हैं। So we have a mixture of two weak monobasic acids.
और फिर उन दोनों को मिक्स किया है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो मूल कंसेप्ट में आपने किया होगा कि अगर मैं दो चीजों को मिक्स करता हूं, अगर मैं दो चीजों को मिक्स करता हूं तो जो टोटल वॉल्यूम होता है वो एड अप हो जाता है। ये मैंने पहले ही आपको बोला था, इफ यू आर मिक्सिंग सम अमाउंट ऑफ वन सॉल्यूशन विद सम अमाउंट ऑफ अनदर सॉल्यूशन, then the mixture which you will get will be having a total volume which is equal to sum of the individual volumes of the two solutions mixed. मतलब क्या है कहने का, आप जब मिक्स कर रहे हो दो चीजों को तो टोटल वॉल्यूम बदल जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, जब आप दो चीजों को मिक्स करते हो तो टोटल वॉल्यूम हमेशा होता है सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम्स। और अगर आप मिक्स कर रहे हो दो चीजों को तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बदल जाता है। दैट इज द मेन पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है पॉइंट टू बी नोटेड? जब आप मिक्स करते हो दो चीजों को, दो सॉल्यूशंस को आप जब मिक्स करते हो तो जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं स्पीशीज के वो चेंज हो जाते हैं मिक्स करने के इमीडिएटली बाद। तो जो हमें पहले उनका कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा जब आप लोग मिक्स करते हैं, कि मिक्स करने के बाद इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग what is the concentration of the acid HA and also what is the concentration of the acid HB, because कोई बोलेगा 0.02 और 0.2, लेकिन ये तो तब कॉन्सेंट्रेशन थे ना जब दोनों को मिक्स नहीं किया था। ये 0.02 और 0.2 मोलर जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे फिलहाल, they are the concentrations of HA and HP respectively, but ये कब के कॉन्सेंट्रेशन है? ये तब कॉन्सेंट्रेशन मेजर किए गए थे जब दोनों को मिक्स नहीं किया था हम लोगों ने। We hadn't mixed them. अब जब मिक्स कर दिया है तब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा वो निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज मिक्सचर में क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 और C2 होते हैं। जो फॉर्मूले में हम लोगों ने C1 और C2 लगाए हैं, जो फॉर्मूला अभी दिखाया था मैंने आपको, वो उन फॉर्मूले में ये जो दिख रहा है ना C1 C2, देखो यहाँ पे है C1 C2। तो ये जो C1 C2 है ये क्या है? इनिशियल मोलैरिटी ऑफ HX इन सॉल्यूशन एंड इनिशियल मोलैरिटी ऑफ HY इन सॉल्यूशन, मतलब मिक्सचर की बात की जा रही है। ओके, सो मिक्सचर में जो कॉन्सेंट्रेशन है एक एसिड का वो निकालना पड़ेगा, वो होते हैं C1 और C2, ना कि मिक्सचर के पहले कि मिक्सिंग के पहले कितना कॉन्सेंट्रेशन था, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा कि मिक्स करने के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन आए थे एसिड्स की। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मिक्स किया दो को, अब कितना वॉल्यूम मिक्स किया है पता नहीं है, मान लेते हैं V लीटर्स, मान लेते हैं V लीटर्स। तो अगर मैंने बोला कि V लीटर्स मिक्स किया है, तो कैन आई से दैट moles of HA will be 0.02 into V, because molarity into liters is moles. Molarity into liters is moles. So 0.02 molarity है, V liters मिक्स किया है मानो, तो 0.02 V moles of HA आ गए। वैसे ही moles of HB will be 0.2 into V। क्यों V लिया है? क्वेश्चन में देखो बोला है इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम का मतलब अगर इसका V लीटर्स मिक्स किया है तो दूसरे का भी V लीटर्स से मिक्स किया है, तो मोल्स ऑफ HA भी आ गए, मोल्स ऑफ HB भी आ गए। मोल्स कैसे निकाला? मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय लीटर्स। मोलारिटी देके रखा है HA का भी और HB का भी। ये तब किसका मोलारिटी है? ये HA और HB के मोलारिटीज हैं तब जब उनको मिक्स नहीं किया था हम लोगों ने। अब मोल्स तो सेम रहेंगे, मोल्स डू नॉट चेंज ऑन मिक्सिंग, लेकिन वॉल्यूम बदल जाता है। आप दो चीजों को मिक्स करो तो टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नाउ आफ्टर मिक्सिंग HA एंड HB? 2V। एग्जैक्टली, मैंने V लीटर्स ऑफ HA को भी ऐड किया है, मैंने V लीटर्स ऑफ HB को भी ऐड किया है, which means that the total volume of the solution now becomes 2V liters. V plus V is equal to 2V. अब मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ, यानी मोलारिटी HA का निकाल सकता हूँ उस सॉल्यूशन में और HB का भी निकाल सकता हूँ मैं उस सॉल्यूशन में। तो क्या हो जाएगा? Can I say C1? Therefore I can say
C1 is moles of HA upon total volume, which is 0.02 V upon 2 V, which is equal to 0.01 मोल। So solution में जब मिक्स किया है मैंने H और HB को, तो HA का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आता है 0.01 मोल्स पर लीटर। कैसे है ये? मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो 2V है, सो मोल्स को डिवाइड कर दिया 2V से, तो आ गया मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। टेल मी व्हाट शुड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HB बी इन द सोल्यूशन? 0.1। कैसे निकालेंगे C2 का वैल्यू? 0.2 V upon 2V। यस, मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। हाँ, तो क्या होगा? C2 का वैल्यू क्या आएगा? C2 का वैल्यू आएगा 0.1। हाँ, C2 का वैल्यू आएगा 0.2V, दैट इज मोल्स ऑफ HB अपॉन टोटल वॉल्यूम। VV कट जाएगा तो आ जाएगा 0.1 मोल्स पर लीटर। अब हमारे पास C1 और C2 के वैल्यूज आ गए। Now we can go ahead with the formula. Since equal volumes are mixed, ये आ गया, ये V अपॉन V कट गया ना, तो ये आ गए C1 और C2 के वैल्यूज। अब C1 और C2 के वैल्यूज आ गए तो आपको H प्लस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आपके लिए H प्लस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है जो स्क्वायर रूट वाला है। So this is the formula for calculating concentration of H plus ions in the solution containing two monoprotic weak acids. K1 and K2 are directly given in the question. C1 and C2 अभी हम लोगों ने निकाल लिया, तो इससे हमारा आ जाएगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट, ये आ रहा है। अब pH निकालना आसान हो जाएगा। pH is minus log of H plus and minus log of concentration of H plus is pH. H plus अगर आ गया तो pH निकाल लोगे। This will be the value of pH. So pH आ गया। और क्या बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए? Let's check that. Also calculate concentration of A minus, concentration of B minus and concentration of OH minus. ये सब भी पूछा है। तो A minus, B minus और OH minus का concentration निकालेंगे। अगर मैं डिसोसिएशन करके दिखाऊं तो ऐसा हो जाएगा फिर से HA का डिसोसिएशन और HB का डिसोसिएशन। C1 और C2 है ना, तो C1 HA का कॉन्सेंट्रेशन था, C2 HB का कॉन्सेंट्रेशन था। अल्फा 1 डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA था, अल्फा 2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HB था। अब H प्लस कॉमन है, इसके लिए टोटल लिया है, इसका H प्लस प्लस इसका H प्लस मिला के फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस टोटल होता है, तो वो टोटल लिया है इसके लिए। तो हमें क्या निकालने बोला है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस is not equal to this and concentration of B minus is nothing but equal to this. इसका मतलब उसके लिए हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 चाहिए, तो ही हम लोग concentration of A minus and concentration of B minus निकाल पाएंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए। क्या है अल्फा 1 का फॉर्मूला? बोला था अभी। यस, अल्फा 1 इज K1 अपॉन H प्लस, अल्फा 2 विल बी Ka2 अपॉन H प्लस। K1 क्वेश्चन में दिया है, H प्लस हम लोगों ने अभी निकाला था, तो डाल दो, तो उससे अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाएंगे। ये था ना H प्लस 2 into 10⁻³ मोलर। This was the concentration of H plus ions. K1 and K2 are given in the question directly. 0.1. So I can get the value of alpha 1 and alpha 2 using the formulae. So it's a direct application of formulae. यहाँ से अल्फा 1 आ गया, अल्फा 2 भी आ गया। एक बार अल्फा 1 अल्फा 2 आ गए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस भी आ जाएंगे। करेक्ट, चेक करो।
अब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? यस, वो भी निकालने बोले ना. हाउ डू वी फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस? Concentration of H plus ions into concentration of OH minus ions equals to 10 to the power minus 14. हाँ, सिंपल वाला यूज करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा concentration of H plus ions multiplied by concentration of OH minus ions is equal to 10 to the power of minus 14. तो H plus का concentration हम लोग के पास है 2 into 10 to the power of minus 3. We will put concentration of H plus ions as 2 into 10 to the power of minus 3. So we will get the concentration of OH minus ions. सर 5 into 10 to the power minus 11 होगा ना? नहीं, ये 1/2 है ना. अच्छा हाँ. 1/2 into 10 to the power of minus 11, which is 5 into 10 to the power of minus 12 ना. हाँ ओके सर. So this is the concentration of OH minus ions. तो A minus का भी आ गया, B minus का भी आ गया, OH minus का भी आ गया. तो अल्फा 1 और अल्फा 2 के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला था और फार्मूले से सीधा अल्फा 1 अल्फा 2 आ गया. Which means whenever we have a mixture of two weak acids, straight away we can go by the formula. यहाँ पे मेन कैच यही था कि ये C1 और C2 निकालना. लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली C1 और C2 को वही ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है. But I am repeating again and again, C1 and C2 are the concentrations after mixing. ऐसा नहीं है कि मिक्सिंग के पहले जो दिया है. क्वेश्चन में जो देके रखते हैं ना, वो बिफोर मिक्सिंग के कॉन्सेंट्रेशंस देके रखते हैं. तो आपको आफ्टर मिक्सिंग जो है वो निकालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन. और इक्वल वॉल्यूम का मतलब हमेशा ये याद रखो, एक का V लीटर्स तो दूसरे का भी V लीटर्स, दोनों का ही V लीटर्स मानना है आपको. So moles upon total volume is the concentration in the mixture. Moles upon total volume, ऐसा होना चाहिए. और इनका डिसोसिएशन दिखाया गया है just the usual way. A minus का concentration will be C1 alpha 1 and B minus का concentration will be C2 alpha 2. Okay. Next we have one important part, that is this one. Mixture of a weak monoprotic acid and a strong acid. अब दूसरा केस क्या है, एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा है. एग्जांपल क्या लेंगे, मानो वी हैव HCOOH, दिस इज अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl. तो ये आ गया आपका एक एग्जांपल. करेक्ट. वैसे मैं ले सकता हूं CH3COOH plus H2SO4. ऐसा ले सकता हूं. ये भी ऐसे होगा ना, वीक मोनोप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. H2SO4 is a strong acid. CH3COOH is a weak monoprotic acid. तो इस केस में क्या करना होता है, let the weak monoprotic acid be HX. Let H plus ions coming from strong acid be X moles per liter. मतलब strong acid भी H plus छोड़ेगा ना, वो तो complete dissociate करता है. तो अगर मान लेते हैं कि strong acid से आ रहा है X moles per liter, तो अभी हम लोग A को dissociation constant of weak acid बोलते हैं, and C माना है initial concentration of HX, that is the weak acid का concentration. Alpha is degree of dissociation of the weak acid. अगर मैंने ये रिप्रेजेंट किया कि शुरुआत में उसका कॉन्सेंट्रेशन C मोल्स पर लीटर था, उसने डिसोसिएट किया है, तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन.
C alpha moles per liter of HX have dissociated, and hence C alpha moles per liter of H plus ions will come out from HX, and C alpha moles per liter of X minus ions will also come out from HX. लेकिन हमें पता है कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन लेना होता है H प्लस का हमेशा। ये टोटल क्या है मैंने, ये टोटल क्या है, ये C अल्फा जो आ रहा है दिस इज ओनली कमिंग फ्रॉम HX, और X जो आ रहा है वो कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज सोल्यूशन में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी है ना, इसके लिए बोला है ना यहाँ पे ये वाला, लेट H प्लस कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड बी X मोल्स पर लीटर। स्ट्रॉन्ग एसिड से जितना H प्लस आयंस आ रहा है उसको मैंने माना है X मोल्स पर लीटर आर कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। तो जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन वो होगा that will be nothing but the sum of concentration of H plus ions coming from weak acid and the concentration of H plus ions coming from the strong acid. इसके लिए टोटल लिया गया यहाँ पे C alpha plus X। तो क्या है C alpha आपका, C alpha is H plus ions coming only and only from HX, that is from the weak acid, and X moles per liter are coming only and only from strong acid. Hence the total concentration of H plus ions becomes C alpha plus X moles per liter. तो K के लिए लिखेंगे वापस ये एक्सप्रेशन, अब H प्लस के बदले में टोटल डालना पड़ेगा C अल्फा प्लस X। H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सोल्यूशन में टोटल लेना पड़ेगा ना, C अल्फा प्लस X। X क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आ रहा है, और C अल्फा क्या है, जो वीक एसिड से आ रहा है। तो टोटल डाल दूंगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे आगे इसको। C को कॉमन ले लोगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। Hence we say that Ka is equal to this. Now one important thing, हमेशा याद रखो, जब भी you have a mixture of weak and strong acids, then always 1 minus alpha is equal to 1, and also C alpha plus X is approximately equal to X। ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके कंपैरिजन में वीक एसिड का जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमेशा कम होता है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए वहां पे ये बोला है कि द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड सप्रेसेस द आयनाइजेशन। सप्रेसेस मतलब कम कर देना। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड होते हैं एक ही साथ, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक एसिड के डिसोसिएशन को कम कर देता है, मतलब अल्फा के वैल्यू को कम कर देता है, एंड हेंस वी सी दैट अल्फा इज मच 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 लेसर देन 1। Whenever you have a strong acid along with a weak acid, then the ionization of the weak acid is depressed or suppressed, and as a result of that अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाती है, और हम लोग इसके लिए ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, that is 1 minus alpha is same as 1। ओके, और एक बात, अगर हमारे पास एक डायप्रोटिक वीक एसिड है जैसे H2S हुआ या H2CO3 हुआ along with a strong acid, तो उस केस में हम लोग डायप्रोटिक वीक एसिड को एक मोनोप्रोटिक वीक एसिड की तरह कंसीडर करते हैं। दैट मींस हम लोग सिर्फ उसका फर्स्ट डिसोसिएशन को कंसीडर करते हैं। आई रिपीट, इफ वी हैव अ डायप्रोटिक एसिड along with a strong acid, if we have a diaprotic weak acid along with a strong acid, in that case we treat the diaprotic weak acid as a monoprotic weak acid। मतलब diaprotic weak acid का हम लोग सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन को ही कंसीडर करते हैं, यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेप को ही कंसीडर करते हैं, यानी सिर्फ Ka1 को ही कंसीडर करते हैं। हम लोग Ka2 को कंसीडर नहीं करते हैं वीक डायप्रोटिक एसिड का। कब नहीं करते हैं, तब नहीं करते हैं जब डायप्रोटिक वीक एसिड प्रेजेंट है along with a strong acid। I repeat, अगर एक डायप्रोटिक वीक एसिड प्रेजेंट है along with a strong acid, तो हम लोग उस वक्त उस डायप्रोटिक वीक एसिड का सिर्फ फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसोसिएशन कंसीडर करते हैं, यानी K1 कंसीडर करते हैं, K2 को सिंपली इग्नोर करते हैं। फिर हम लोग यही बोला गया स्टेप में। अगर एक सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। So let's do a sum. The sum is this.
Calculate pH of a mixture containing 0.1 molar HCl and 0.1 molar H2S. ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया आपका वीक डाइप्रोटिक एसिड। मैंने क्या बोला था, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक डाइप्रोटिक एसिड एक साथ होते हैं तो डाइप्रोटिक एसिड को भी हम लोग एक मोनोप्रोटिक एसिड की तरह कंसीडर करेंगे और उसका सिर्फ K1 देखेंगे, यानी सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट को देखेंगे। ठीक है, so HCl is a strong acid, it will ionize completely। कितना आ रहा है H प्लस से आयन, HCl से H प्लस 0.1, कितना 0.1 कैसा है, HCl का कंसंट्रेशन 0.1 है सॉल्यूशन में, so 0.1 moles per liter of HCl are present, तो H प्लस फ्रॉम HCl भी 0.1 ही आएगा। अब H2S का देखा जा रहा है, H2S को डिसोसिएट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट स्टेप कंसीडर करेंगे तो ऐसा आएगा, और ये प्लस 0.1 क्या है, ये वाला है जो H प्लस आयंस HCl से आ रहे थे, जो H प्लस आयंस HCl से आ रहे थे वो 0.1 आ रहे थे, तो टोटल H प्लस लेने के वक्त मुझे 0.1 ऐड करना पड़ेगा ना। So in the same manner if we go ahead, भाई यहाँ पे बोला गया है कि alpha 2 is much smaller than alpha 1 and so we must straight away ignore alpha 2 with respect to 1। तो K1 का एक्सप्रेशन आप लिखोगे, K1 आपको क्वेश्चन में देके रखा है तो सीधा ये आप कर सकते हो, तो ये आ जाएगा। फिर वापस 1 माइनस अल्फा 1 को आप इग्नोर करोगे, अप्रोक्सीमेटली आप इसको 1 बोलोगे इस वाले स्टेप में, तो ये हो जाएगा। फिर एंड यहाँ से H प्लस आयंस अल्फा 1 आ जाएगा और अल्फा 1 के बाद H प्लस आयंस आ जाएगा। अब देखो 0.1 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -7 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 ओनली ना। 0.1 के साथ अगर आप 10 टू द पावर ऑफ -7 ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 ही होगा और फिर pH निकल जाएगा -12 H प्लस। करेक्ट। एंड सल्फर आयंस का कंसंट्रेशन निकालने के लिए सेकंड स्टेप देखना पड़ेगा डिसोसिएशन का। So this is sulfur ions का concentration just like you were doing earlier। जैसे ऐसा आ जाएगा, वापस 1 minus alpha 2 को आप बोलोगे 1 because alpha 2 is much smaller than 1, तो यहाँ से alpha 2 आ जाएगा। एक बार alpha 2 आ गया तो फिर sulfur ions का concentration आ गया।